Hello students, welcome in our geography class. Today we are going to start a new chapter, minerals and rocks. So, till now we are very much getting lots of information, very much aware by several things that what kind of earth is in the interior part of the earth, what kind of composition the earth having, why the continents drift, what are the reasons behind the spreading of seafloor, and what kind of substances the earth is formed, right? So students, we know that the earth is composed of various kinds of elements, right? अभी तक जितना सब कुछ हमने पढ़ा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, फिजियोग्राफिक डिवीजन, इन सब से हमें ये बात तो पता चल गई कि हमारा अर्थ जो है, ये पूरा का पूरा अर्थ डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से बना है. इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर एंड in hot and molten form in the interior. By volcanic eruption, we got the information that yes, our earth is hot and molten in form in the inside, and because we are living on the surface, and what we observe that the outer layer of the earth is solid form, right? Let us discuss more. About 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements. Crust. We know that due to the chapter interior of the earth, we are having the information that our earth is in layer form and there are 3 major layers found, and these 3 layers are crust, mantle and core. From top to bottom. So we are talking about our crust. Our crust, 98% of our crust is made up of 8 major elements, and these 8 major elements are oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium. And the rest, it means rest 2% is constituted by titanium, hydrogen, phosphorus, manganese, sulfur, carbon, nickel and other elements. So the elements in the earth's crust are rarely found exclusively but are usually combined with other elements to make various substances. What it means? ये जो अर्थ का क्रस्ट है, जो इतने सारे मेजर कंपोनेंट का एक टुगेदर फॉर्म है, ये क्रस्ट जो है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही रेयरली सेपरेटेड फॉर्म में मिलते हैं. इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट ज्यादातर कंपोज्ड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ. तो दीज सब्सटेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स, और जो वो कंबाइंड सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स, राइट? So students, a mineral is a naturally occurring organic and inorganic substances. मिनरल क्या होता है? मिनरल एक नेचुरली अकरिंग यानी कि नेचर से बना हुआ ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है which having an orderly atomic structure and a definite chemical composition with a physical properties. एक मिनरल की खासियत ये है कि वो नेचुरली अकरिंग होता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और उसका एक ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है. वो स्ट्रक्चर किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके के अरेंजमेंट वाला हो सकता है. क्यूब हो सकता है, ऑक्टेड्रॉन्स हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, किसी भी तरीके का. केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि केमिकल भी डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं. सल्फर हो सकता है उसमें, है ना, या और भी अदर तरीके के जो केमिकल्स होते हैं वो सारे इंक्लूडेड हो सकते हैं. और साथ ही इसमें इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है. हर मिनरल्स की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, राइट? But sometimes single element minerals like sulfur, copper, silver
gold, graphite, etc. are also found. ये तो हमने उनकी बात की, उन मिनरल्स की बात की जिसमें कंपोजिशन होते हैं, लेकिन कई बार कुछ एलिमेंट्स विदाउट कंपोजिशन यानी कि अदर देन मिनरल्स भी मिलते हैं, और ये सेपरेटेड एलिमेंट्स मिनरल होते हैं सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, यानी कि ये किसी के साथ नहीं कंपोजिट होते हैं, ये सेपरेटेड इंडिविजुअली फॉर्म में मिलते हैं. अंडरस्टूड? So students, though the number of elements making up the lithosphere are limited, they are combined in many different ways to make up many varieties of minerals. ये जो number of element हैं, इन्होंने मिल करके lithosphere बनाया है, but they are combined in many different ways to make a variety of minerals. And according to these entire analysis, now we human identify 2000 types of minerals. We identified them and we given the name to them. So these 2000 type of minerals are identified in the earth crust. But do you know that almost all the commonly occurring ones are related to 6 major minerals. ये जो 2000 तरह के मिनरल हैं वो 6 मेजर मिनरल के साथ में कंपोजिट होते हैं. And we classify these 6 major minerals into group as major rock forming minerals, right? इन्हें हमने ग्रुप बना दिया है rock forming minerals का. So students, the basic source of all minerals is the hot magma. एक बात अभी तक हमने क्लासिफाई कर ली है, आइडेंटिफाई कर ली है कि सारे मिनरल्स जो हैं इनका जो बेसिक सोर्स है वो मैग्मा है, वही हॉट मैग्मा जो वॉल्केनिक इरप्शन के समय अर्थ से बाहर आता है. So when magma cools, crystals of minerals appear and a systematic series of minerals are formed in a sequence to solidify so as to form rocks. तो जब मैग्मा ठंडा होता है तो मिनरल क्रिस्टल के तौर पर अपीयर होते हैं, एक सिस्टमैटिक सीरीज में अपीयर होते हैं और ये सॉलिडिफाई होकर के डिफरेंट फॉर्म्स की रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं. मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स. आपको पता है कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसा नहीं है हमेशा सॉलिड में ही मिले, ये सॉलिड, लिक्विड या गैसियस किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं. कोल सॉलिड में, पेट्रोलियम लिक्विड और नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में मिलता है. एंड ऑल द थ्री आर मिनरल्स. So here a brief information about some important minerals in terms of their nature and physical characteristics given below. Let us examine some of the physical characteristics. External crystal form. बाहरी आवरण कैसा होता है किसी मिनरल का, ये डिटरमाइन करता है इंटरनल अरेंजमेंट से. अगर इंटरनल अरेंजमेंट जैसा भी होगा वैसा ही बाहर का आवरण होगा, और ये इंटरनल अरेंजमेंट किसी भी शेप में हो सकता है, क्यूब, ऑक्टेड्रॉन्स, हेक्सागोनल, प्रिज्म, किसी में भी. प्रिज्म ऐसे बनता है इस तरीके का, ऐसा ही कुछ है ना. हेक्सागोनल जिसकी 6 साइड होती हैं, क्यूब कुछ इस तरीके का, ऐसा ये है क्यूब. तो मिनरल जो है उसका एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म उसके इंटरनल अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है. जिस तरीके से इंटरनल अरेंजमेंट होगा वैसा ही एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म बनेगा. क्लीवेज. क्लीवेज मीन्स टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शन. हम रॉक्स को तोड़ते हैं और जिस डायरेक्शन में रॉक टूटती है वो क्लियर करती है क्लीवेज को कि टेंडेंसी क्या है किसी रॉक के टूटने की. So result of internal arrangement of the molecules may cleave in one or more direction. तो जिस तरीके का इंटरनल अरेंजमेंट होगा जब रॉक को सरफेस पर तोड़ा जाएगा तो उस क्लीव के अकॉर्डिंग ही, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना एक एंगल पर टूटेगा. ठीक है. फ्रैक्चर. इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स. हम सभी जानते हैं
मिनरल के इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. द क्रिस्टल विल ब्रेक इन इरेगुलर मैनर. और जब भी ये टूटता है तो इसके क्रिस्टल जो है इरेगुलर मैनर में अलग होते हैं, ना कि प्लेन्स ऑफ क्लीवेज में. जरूरी नहीं कि हर बार एक ही डायरेक्शन में, एक ही क्लीवेज वाले प्लेन्स में कन्वर्ट हो. जब भी फ्रैक्चर आता है तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये जो क्रिस्टल ब्रेक होते हैं इनका कोई रेगुलर मैनर नहीं होता है. दे ऑल आर इरेगुलर मैनर. लस्टर, अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल. कैसा दिखता है? लस्टर क्या है? मिनरल्स डिस्टिंक्टिव होते हैं लस्टर के अकॉर्डिंग. मेटेलिक हो सकते हैं, सिल्की हो सकते हैं, ग्लॉसी हो सकते हैं, राइट. अपीयरेंस, चमक रहा है या नहीं चमक रहा है, बहुत ही डल है, वैसा. कलर की बात करें तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटिव कलर्स होते हैं. मेलेशाइट, ऑजिराइट, चाल्कोपाइराइट एटसेट्रा. एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज. जो कलर आता है मिनरल में वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है, या फिर उस स्ट्रक्चर में, उस मिनरल में इम्प्योरिटी कैसी है. फॉर एग्जाम्पल, इम्प्योरिटीज ऑफ क्वार्ट्ज में बी वाइट. क्वार्ट्ज के अंदर की इम्प्योरिटी वाइट कलर की शो होती है, या फिर ग्रीन, रेड, येलो, किसी भी कलर की हो सकती है. यानी कि उसके अंदर के इम्प्योर सब्सटेंसेस का कलर डिफरेंशिएटिव होता है. streak, color of the ground powder of any mineral. It may be of same color as the mineral or may differ. streak जो होता है ये ग्राउंड पाउडर का कलर होता है मिनरल के. ये डिफरेंशिएटिव भी होता है, सेम भी हो सकता है मिनरल के अकॉर्डिंग. जैसे कि मेलेशाइट जो है ये ग्रीन होता है एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक. फ्लोराइट इज पर्पल और ग्रीन बट गिव्स अ वाइट स्ट्रीक. दिखता पर्पल या ग्रीन है पर जब इसकी स्ट्रीक नजर आती है तो वाइटर कलर में होती है. ट्रांसपेरेंसी, कुछ मिनरल ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ऐसे ट्रांसपेरेंट मिनरल्स में से लाइट की जो रेज हैं वो पास हो सकती हैं. अगर मिनरल्स में से लाइट की रेज पास हो रही हैं तो वो मिनरल ट्रांसपेरेंट कहलाता है. कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ग्लास जो बनता है वो ऐसे ही मिनरल से बनता है, राइट. जबकि आयरन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है. स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, फाइन, मीडियम, कोरस, ग्रेन, कैसा भी हो सकता है. ठीक है. हार्डनेस, अब मिनरल जो होता है वो काफी हार्ड या काफी सॉफ्ट भी हो सकता है. तो रिलेटिव रेसिस्टेंस बीइंग स्ट्रक्चर्ड, 10 मिनरल्स आर सेलेक्टेड टू मेजर द डिग्री ऑफ हार्डनेस. यहाँ पे 10 मिनरल्स को सेलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू हार्डनेस, सबसे कम और उससे ज्यादा के अकॉर्डिंग. टाल्क, जिससे टेल्कम पाउडर बनता है, सबसे सॉफ्ट मिनरल होता है. फिर जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरिंडम, डायमंड. Diamond is the hardest mineral ever. So compared to this, for example, a fingernail is 2.5 and glass or knife blade is 5.5. हार्डनेस समझोगे? एक फिंगरनेल कील जो है 2.5 उसकी हार्डनेस होती है, और ग्लास या नाइफ की जो ब्लेड होती है उसकी हार्डनेस 5.5 होती है. इसे बहुत शार्प होता है. नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी, द रेशियो बिटवीन द वेट और एन गिवन ऑब्जेक्ट. ग्रेविटी क्या होती है? रेशियो होता है वेट का और गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर. ऑब्जेक्ट वेटेड इन एयर एंड देन वेटेड इन वाटर एंड डिवाइड वेट इन एयर बाय द डिफरेंस ऑफ टू वेट्स. किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर ग्रेविटी पता करनी है तो वो इस फॉर्मूला से पता होती है. कैसे? रेशियो निकाला जाता है वेट का वाटर में और एयर में, राइट. weighted in water and divide weighted in air by the difference in two weights. Then we find out the specific gravity. These are some of the characteristics of minerals. इन characteristics को ध्यान में रख करके minerals को classify किया जाता है. फिर बताया जाता है कि कौन सा mineral hard है, कौन सा mineral soft है, कौन सा mineral liquid है, कौन सा solid है, कौन सा mineral किस कलर का है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं है. Got it? Now the next topic,
types of minerals. Students, there are several types of minerals found. And आपने 10th में पढ़ा भी होगा types. मैं भी बुक के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक रफ सिस्टम समझाती हूँ. मिनरल्स होते हैं मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल. राइट. Metallic minerals again classified into two categories. Three categories. Ferrous, non-ferrous and precious. Ferrous metallic minerals वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी फेरस वाली होती है, आयरन प्रॉपर्टी की होती है. नॉन फेरस जिनकी प्रॉपर्टी आयरन की नहीं होती. तो जिसमें आयरन होता है वो फेरस, जो आयरन वाले नहीं होते जैसे कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, they are not having iron composition, so they are non-ferrous. And precious like gold, platinum, silver, these are the precious elements. Non-metallic जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती पर दे आर कॉल्ड मिनरल्स. मिनरल्स कहलाते हैं पर इनमें मेटलिक प्रॉपर्टी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, मार्बल, सॉल्ट एक्सेट्रा. एंड एनर्जी मिनरल. एनर्जी मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जिनसे एनर्जी रिलीज या प्रोड्यूस की जाती है. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम का एग्जाम्पल पहले भी आया था ये बताने के लिए कि मिनरल्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर द टाइप ऑफ मिनरल्स. अंडरस्टूड. टुमारो we will going to discuss these differentiation separately. So hope you guys understand the entire topic well. Tomorrow we will classify all these type of differentiation separately like metallic, non-metallic, and also we will find out how the minerals are obtained. Till then, have a nice day. Thank you. Take care.